اردو حروف یا اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ر، ڑ، کھ، گھ، ل، مھ، نہ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ظے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں۔ صرف طے اور ظے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں۔ پے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل، ہے، جیم، حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے، افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے
تو، تم، میں، ہم وغیرہ۔ البتہ عمودی یا ورٹیکل حروف سے سب ملتے ہیں، وہ کسی کو نہیں ملاتے۔ آخری بات یہ، اردو میں الفاظ کا آخری حرف پورا لکھا جاتا ہے، جیسے جب کا بے، تم کا میم، میں کا نون اور تک کا کاف پورا لکھا گیا ہے۔ اردو پڑھنے کے لیے ان آوازوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ زبر آ، زیر ای، پیش او۔ مشتق الفاظ، اس کو دیکھیے، یہ کیا ہے؟ ای، اس کے کوئی معنی نہیں، لیکن اگر آپ اس کے آگے ایک لفظ بھلا لکھ دیں گے تو یہ ایک بامعنی لفظ بن جائے گا۔ بے معنی لفظ ای کو بامعنی الفاظ کے ساتھ جوڑ کر الفاظ بنانے کو ہم کہتے ہیں کیا؟ مشتق الفاظ۔ عزیز دوستو، آداب عرض ہے، آؤ اردو سیکھیں کی عالمی جماعت میں آپ سب کا دلی خیر مقدم ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں مشتق الفاظ بنانے کا طریقہ سیکھا تھا، جس میں بے معنی الفاظ کو بامعنی الفاظ کے ساتھ جوڑ کر الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ جیسے ای، ای کے آگے ہم نے بھلا لگایا تو ایک لفظ بنا بھلائی، اسی طرح برائی، سنائی، دکھائی وغیرہ۔ یا جیسے ہٹ کے آگے مسکرا لگایا تو وہ بن گیا مسکراہٹ، اسی طرح گھبراہٹ وغیرہ۔ تو یہ رہا مشتق الفاظ بنانے کا طریقہ۔ چلیے آج ہم بنائیں مرکب الفاظ، اور یہ دیکھیں کہ مرکب الفاظ کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی کہ مرکب الفاظ بنانے کا طریقہ کیا ہے یا بنانے کے کتنے طریقے ہیں۔ تو آغاز کریں ہم آج کے سبق کا۔ مرکب الفاظ سے کیا مراد ہے؟ دوستو، آپ نے کئی خوبصورت جوڑے دیکھے ہوں گے، لڑکا خوبصورت، لڑکی حسین، دولہے میاں چاند تو دلہن چاند کا ٹکڑا، کبھی دو دوست خوبصورت تو دو سہیلیاں چندے مہتاب اور چندے آفتاب۔ مگر یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، لفظوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ دو لفظ پاس پاس لکھ دیے جائیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، جیسے ہنس کا جوڑا ہے۔ تو اس طرح دو لفظوں کو پاس پاس رکھ کر انہیں لکھ کر ایک لفظ بنانے کا نام مرکب الفاظ ہے۔ آئیے آج کی کلاس میں ہم مرکب الفاظ بنانے کے مختلف طریقے دیکھیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مرکب الفاظ سابقوں اور لاحقوں سے بنائے جاتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے سابقوں کو دیکھیں گے اور ان سے بنائیں گے کچھ الفاظ۔ ایک سابقہ ہم لیں گے خوش۔ خوش کے ساتھ جیسے خوش قسمت، یہ ایک لفظ ہے اور ایک لفظ ہے، ان دونوں کو جوڑ کر بنانے کا نام مرکب الفاظ ہے، اور مرکب الفاظ بنانے کا ایک طریقہ ہے سابقے کے ذریعے سے۔ چلیے ایک کام کرتے ہیں، ایک اور سابقہ لیتے ہیں، جیسے شاہ۔ سر، ہاں بتائیے۔ مشتق الفاظ اور مرکب الفاظ میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مشتق الفاظ میں ایک بے معنی لفظ ہوتا ہے اور ایک بامعنی لفظ ہوتا ہے۔ جیسے ای مسکرا یا ہٹ ہے
मुस्कुरा प्लस हट, मुस्कुराहट है। इसमें मुस्कुरा बामाने है, हट बेमाने है। जबकि मुरक्कब अल्फाज में ऐसा नहीं होता। मुरक्कब अल्फाज में दोनों लफ्ज बामाने होते हैं। जैसे आपने देखा खुश, उसके भी माने हैं, किस्मत, उसके भी माने हैं। तो ये फर्क है मुरक्कब अल्फाज में और मुश्तक अल्फाज में। अब आइए हम देखते हैं शाह। शाह से एक लफ्ज हम बना सकते हैं जैसे शाहराह है। इसी का एक और लफ्ज हम लेते हैं शाह, दोनों एक ही मानों में आता है। शाहराह, जैसे अभी मेन रोड अगर कहते हैं तो शाह प्लस राह शाहराह होता है। इसी तरह शह से एक लफ्ज हमने अभी देखा, शहजोर बनाया था। तो शाह से कई अल्फाज बनाते हैं। हाँ बोलो जेनिफर। शाहरुख। शाहरुख, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। शाहरुख है, शाहरुख है। मैं लिख दूं यहां पर शाहरुख है, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ आप बताइए। शहजादा। हाँ, शहजादा, शहजादी, शहजादे, ये सब मुरक्कब अल्फाज में शुमार होते हैं। अब आइए हम बनाएं लाहकों से कुछ अल्फाज। साबिक़े तो लफ्ज़ से पहले आते हैं, लेकिन लाहक़े लफ्ज़ के बाद आते हैं। अब जैसे इसमें किस्मत, किस्मत से पहले खुश आया है, और इसी तरह से राह से पहले शाह आया है, इसीलिए इसको साबिक़ा कहा जाता है। जबकि लाहक़ा क्या है? जो लफ्ज़ के बाद आता है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैं एक लफ्ज़ लूंगा, आबाद है, यह एक लाहक़ा है। आबाद है एक लाहक़ा है। इसके आगे हम लगाएंगे हैदर, तो यह बन जाएगा हैदर आबाद। अब आइए हम एक और लाहक़ा लेंगे, जैसे बाज। बाज एक और लाहक़ा है। मैं अभी आपको बता दूं, ये आम तौर पर ये लफ्ज़ हमारे पास चलता है, गेंदबाज, गेंद फेंकना वगैरह वगैरह। तो हमने अभी देखा आबाद, उसके बाद बाज। जैसे मैं एक और लफ्ज़ आपको यहां लिख दूं, जाबाज वगैरह। अब आइए हम एक और लाहक़ा लेंगे। कितने लाहक़े हमने देखे? एक तो यह है कि आबाद है, और दूसरा है आबाद बाज। अब आइए एक मिसाल के वास्ते एक और लफ्ज हम ले, तराश। तराश, कलम तराश, और इसी से बनेगा एक लफ्ज संग तराश। यह है संग तराश। तो देखिए कि यहां कुछ लाहक़े हैं, कुछ साबिक़े हैं। तो पता है चला कि हम मुरक्कब अल्फाज बना सकते हैं। मुरक्कब अल्फाज हम बना सकते हैं साबिक़ों से और लाहक़ों से, दोनों से। क्या ये दोनों ही तरीक़े हैं या कुछ और हैं? सवाल हमारे पास रहेगा। नाज़रीन, यो नहीं है कि मुरक्कब अल्फाज सिर्फ साबिक़ों और लाहक़ों से बनाए जाते हैं। जी ऐसा नहीं है। मुरक्कब अल्फाज के बनाने के कुछ और तरीक़े भी हैं। अब आइए हम मुरक्कब अल्फाज बनाने के कुछ और तरीक़े देखें। तो चलें। पहला तरीक़ा मुरक्कब अल्फाज बनाने का, दो नामों को जोड़कर किसी जगह का नाम बनाया जाता है। दो नामों को जोड़कर किसी जगह का नाम बनाया जाता है। जैसे एक नाम है किताब, अब आप इसको जोड़िए प्लस एक और नाम है घर, तो किताब प्लस घर, किताब घर। इसी तरीके से डाक प्लस घर, ये बन जाएगा डाक घर। एक और देखिए, धोबी प्लस घाट, ये बन जाएगा धोबी घाट।
दूसरा तरीका भी इससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा अलग है। वो तरीका ये है कि दो नामों को जोड़कर किसी शख्स या किसी चीज की अच्छाई या बुराई का नाम बनाया जाता है। जैसे ये दूसरा तरीका है, जैसे दरिया एक नाम है, आप प्लस दिल, दरिया प्लस दिल क्या बनेगा? दरिया दिल बनेगा। तो ये एक शख्स की अच्छाई है, एक शख्स की अच्छाई का नाम है, दरिया प्लस दिल, दरिया दिल। इसी तरीके से एक लफ्ज है खर प्लस दिमाग। खर कहते हैं गधे को, दिमाग जाहिर है हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, वो भी एक नाम है, एक जानवर का नाम है, एक हमारे जिस्म के एक हिस्से का नाम है। दोनों को जोड़कर हमने एक मुरक्कब लफ्ज बनाया खर दिमाग। खर दिमाग कहते हैं मगरूर, घमंडी और मुतकब्बिर आदमी को। तो यह है खर दिमाग। चलिए एक और लफ्ज यही बनाए हम, जन प्लस मुरीद, ये बन जाएगा जन मुरीद। जन भी नाम है और मुरीद भी नाम है, बीवी के मुती को कहते हैं। तो ये रहे दो तरीके। अब आइए कुछ और तरीके देखें। तरीका नंबर 3, एक ही माने के दो लफ्जों को जोड़कर हम बनाएंगे मुरक्कब लफ्ज। एक ही माने, जैसे दोस्त और आशना, दोनों के माने एक ही हैं, दोस्त भी वही है, आशना भी वही है, लेकिन बोलने के लिए हम बनाएंगे दोस्त आशना। तो ये बनेगा इस तरह, एक लफ्ज। ऐसे कई अल्फाज हैं उर्दू में, जैसे शायर प्लस तमाशा। जब कहेंगे तो कहेंगे शायर तमाशा, दोस्त आशना, शायर तमाशा। और एक और लफ्ज है जैसे गली प्लस कूचा, दोनों को मिलाकर हम बनाएंगे गली कूचा। ये एक माने दो लफ्ज, दोनों को जोड़कर हमने बनाया एक मुरक्कब लफ्ज। अब आइए चौथा तरीका देखें हम। चौथा तरीका देखें, इसमें इसका उल्टा है। यहां एक माने दो लफ्ज है, वहां दो लफ्ज एक माने है, दो लफ्ज एक माने है। जैसे मिसाल के तौर पर मां प्लस बाप, मां बाप, मां अलग लफ्ज है, बाप अलग लफ्ज है, हमने दोनों को जोड़कर एक मुरक्कब लफ्ज बनाया मां बाप। ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज बनता है जैसे दाना प्लस पानी, दाना प्लस पानी। अब दाना अलग है, पानी अलग है, लेकिन दाना पानी हम जोड़कर बनाते हैं। जैसे किसी का इंतकाल हो जाए तो कहते हैं उसका दाना पानी उड़ गया, एक मुहावरा है। इसी तरह आप बना सकते हैं मियां बीवी, मियां प्लस बीवी। अब इनको आपने जोड़ लिया तो ये एक मुरक्कब लफ्ज बन जाता है, इसे कहेंगे हम मियां बीवी। तो ये तरीका था चौथा। अब आइए हम एक और तरीका देखें, पांचवा, और उसमें क्या है कि एक लफ्ज है लेकिन उसे आप दो बार बोल रहे हैं। लफ्ज एक ही है लेकिन उसे आप क्या कर रहे हैं, दो बार बोल रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बाल बाल, जैसे बाल बाल। ऐसे कई लफ्ज आप भी बना सकते हैं। जैसे घड़ी घड़ी, हाँ बिल्कुल सही कहा, घड़ी घड़ी। जैसे हम लिखें यहां पर
बाल बाल, घड़ी घड़ी, घर घर, घर घर। आपको इस तरह याद रह गया? ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, घर घर। तो एक लफ्ज को आपने क्या किया, दो बार आपने उसको कहा, तो उसमें थोड़ा जोर पैदा हो गया, तो ये भी एक मुरक्कब लफ्ज है। अब आइए एक और हम देखें तरीका 6, और उसमें ये है कि लफ्ज एक ही है मगर उसमें उसे दो बार बोलते हैं। यहां भी हमने क्या किया, दो बार कहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। लफ्ज एक है, उसे दो बार बोलते हैं, मगर दोनों लफ्जों के दरमियान में एक अलिफ का इजाफा कर देते हैं और उससे एक मुरक्कब लफ्ज बनाते हैं। जैसे रंग है, अब आपने क्या किया, रंग यहां लिखा और यहां एक आपने रंग लिखा, अब इसमें अलिफ का इजाफा कर दिया, तो यह लफ्ज बन गया रंगारंग। इस तरह रंगारंग, बड़ी रंगारंग तकरीब थी। ठीक है, इसी तरह से आप सरासर एक लफ्ज बन सकता है, और एक लफ्ज बहुत ही आम है और वो है गर्मा गर्म। तो ये तरीके हैं 6 लिखने के, मुरक्कब अल्फाज बनाने के। एक किताब घर, दरिया दिल, दोस्त आशना, माँ बाप, बाल बाल और गर्मा गर्म वगैरह। इनके अलावा भी और 2 तरीके हैं मुरक्कब अल्फाज बनाने के, और वो है जैसे कभी लफ्जों को तोड़कर बनाते हैं। जैसे घोड़ा प्लस दौड़ है, घोड़ा प्लस दौड़ है, तो घोड़ा दौड़ कहना है, लेकिन घोड़ा दौड़ नहीं कहा जाता, कहते हैं घोड़दौड़। क्या कहते हैं? घोड़दौड़ कहते हैं। तो हमने घोड़ा को थोड़ा सा बदल लिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया उसको, और उससे कहा घोड़ा दौड़ के बजाय हमने कहा घोड़दौड़। तो आइए हम कुछ मिसालें प्लाज्मा पे देखते हैं। यहां कुछ अल्फाज हैं, उन्हें गौर से देखिए। जैसे कान प्लस कटा है, यह बन गया कनकटा। हाथ प्लस कड़ी है और यह बन गया हथकड़ी। काट प्लस पुतली है और यह बन गया कठपुतली। इसी तरह पानी प्लस चक्की है, जिसे हम पंचक्की कहते हैं, यह पानी प्लस चक्की है। तो इस तरह लफ्जों को थोड़ा तोड़कर भी हम मुरक्कब अल्फाज बनाते हैं। अब आइए कुछ एक और आखिरी तरीका हम देखें। फारसी इजाफतों के जरिए से हम मुरक्कब अल्फाज बनाते हैं, उसकी कुछ मिसालें मैं अभी प्लाज्मा पे आपको दिखाऊंगा। अब आइए हम देखें फारसी के कुछ मुरक्कब अल्फाज। जैसे खाना खुदा है, बहारे वतन और साहिल समंदर। खाना खुदा हमजा से और बहारे वतन और साहिल समंदर जेर के जरिए से या जेर लगाकर बनाए गए हैं। तो इस तरह हम मुरक्कब अल्फाज बनाते हैं, और मुरक्कब अल्फाज बनाने के कई तरीके हैं। सर, मुरक्कब अल्फाज लिखने का तरीका क्या है सर? हाँ, अच्छा सवाल है। मुरक्कब अल्फाज कैसे लिखे जाएं, तो इस सिलसिले में एक उम्दा उसूल याद रखिए, और वो ये है कि मुरक्कब अल्फाज बेहतर है आप अलग अलग लिखें, जबकि मुश्तक अल्फाज बेहतर है आप मिलाकर लिखें। जैसे यहाँ देखिए, ये सब मुरक्कब अल्फाज हैं और आप देख रहे हैं कि इन्हें अलग अलग लिखा गया है। जैसे खूब अलग है, सूरत अलग है। बाज़ लोग इसे मिला के लिख देते हैं। अच्छा कायदा, उम्दा कायदा यह है कि आप उसे अलग अलग लिखें। इसी तरह हम सफ़र या अक्लमंद, खुश रंग या बेशुमार या अनगिनत वगैरह। तो बेहतर यह होगा कि मुरक्कब अल्फाज आप अलग अलग लिखें और मुश्तक अल्फाज आप मिलाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो नाज़रीन, हमने आज की क्लास में सीखा मुरक्कब अल्फाज बनाने का और उन्हें लिखने का तरीका, और कई तरीके हमने देखे। अब हम लेंगे आपसे विदा। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी,
آپ ضرور ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہیے. دوستو آج آپ نے جتنے مرکب الفاظ بنائے ہیں انہیں پڑھیے اور دیجئے. مظفر شہمیری کو یہی اجازت. خدا